Now what's decision table? Decision table is another knowledge codifying tool, and it's a graphical method for explaining the logic of making a decision in tabular format. It is a set of conditions plus set of actions and different combination of decisions. It's a matrix representation of logic of decisions which specify the possible conditions for decision and resulting actions. तो डिसीजन टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं और साथ में ही सेट ऑफ एक्शंस को भी स्पेसिफाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस कंडीशन पे हमें कब और कैसे कौन सी एक्शन हमें लेनी है। The decision table is divided into two parts. One is the conditional part, second is the action part. अब जो conditional part है, that is subdivided into two more parts. One is the condition stub, second is the condition entry. Likewise, action part is also subdivided into two more parts. One is the action stub, second is the action entry. Let us discuss these two parts. One is the condition, second is the action part in the next slide. Here in this slide, we will first discuss the condition parts. One is the condition stub, second is the condition entry. Then we will discuss action parts. One is the action stub, second is the action entry. Now what's condition stub? Condition stub describes the conditions that are existing in the problem logic. यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में जितनी भी कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं इन द कंडीशन स्टब पार्ट. Then the second is the condition entry. Condition entry provides answers to the questions and the conditions asked in the condition stub. अब condition stub में जो भी हमें कंडीशन या क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है या स्पेसिफाई किया है उनके आंसर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कंडीशन एंट्री पार्ट में. सो कंडीशन एंट्री पार्ट में बेसिकली एंट्री हो जाती है. नाउ आफ्टर दिस एक्शन स्टब. एक्शन स्टब डिस्क्राइब्स द एक्शंस टू बी टेकन टू मीट ईच कंडीशन. एक्शन स्टब एक ऐसा पार्ट है डिसीजन टेबल का जहां पर हम एक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं टू मीट द कंडीशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द कंडीशन स्टब. Then the action entry. Action entry describes the appropriate action resulting from the answer to the condition in condition entry. यानी कि condition entry में जो हमने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं उन आंसर्स पे कौन सी एक्शन हमें लेनी है उसकी एंट्री हम एक्शन एंट्री में दिखाते हैं. So these are the four parts of the decision table. Now let's understand decision table by taking the example, in fact two examples. First we will discuss one of the example which we have already discussed, that was about the money withdrawal. The second is about the discount policy. Now let's consider the first example which we have already discussed in the decision tree, and the example is the money withdrawal example. Now उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि मनी विथड्रॉ दो ही कंडीशंस में होती है. फर्स्ट इज अगर अकाउंट होल्डर का विथड्रॉल अमाउंट लेस और इक्वल टू बैलेंस उसके अकाउंट की जो है. दूसरा अगर उसको बैंक ने ऑलरेडी क्रेडिट ग्रांट किया है उसके अकाउंट पे. तो एक्शन एक है, लेट्स विथड्रॉल ग्रांटेड और नॉट. अब इस वाली एग्जाम्पल में हमारे पास तीन रूल्स हैं, जैसे रूल 1, रूल 2 और रूल 3. रूल 1 अगर ट्रू है, विथड्रॉल अमाउंट इज लेस और इक्वल टू बैलेंस, अगर ये वाला चीज है हमारे पास तो विथड्रॉल इज ग्रांटेड. तो नीचे मैंने ट्रू टी करके दिखाया है इसको. But if the withdrawal amount is less or equal to the balance, if it is false, that's R2. R2 में पहली एंट्री अगर मैंने F दिखाई है, means the first condition is not met,
then we are checking the second condition, whether the credit has been granted on the account or not. But this time, if it is true, then withdrawal is again granted. So नीचे हमने दिखाया है T फिर से R2 कॉलम में. अब now the R3 condition क्या है? If the withdrawal amount is less or equal to balance is false, and the credit granted on the account is also false, then the action of withdrawal granted is also false. Means the account holder will not get any credit. So इस तरह से हम एक प्रॉब्लम को डिसीजन टेबल में मॉडल करते हैं, या अगर हमारे पास कोई नॉलेज होती है उसको हम मॉडल करते हैं डिसीजन टेबल में. Hope you understood this example. Now let's take another example that's about the discount policy in the next slide. Now let's model the discount policy using the decision table. जो आपकी स्क्रीन पर डिसीजन टेबल मैंने दिखाया है इस टाइम शो हो रहा है. इस डिसीजन टेबल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज द इफ पार्ट, जहां पर मैंने कंडीशंस को स्पेसिफाई किया है, दैट्स कॉल्ड द कंडीशन स्टब. अब कंडीशन स्टब के अगेंस्ट में जहां पर कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 मैंने दिखाए हैं, जहां पर इधर मैंने यस दिखाया या नो दिखाया है, दैट्स कॉल्ड द कंडीशन एंट्री. उसके बाद लोअर लेफ्ट में मैंने देन कर एक्शन पार्ट दिखाया है, जहां पर देन मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है एलो 25% डिस्काउंट, एलो 15% डिस्काउंट, एलो 10% डिस्काउंट, एलो 5% डिस्काउंट, एलो नो डिस्काउंट. तो दिस कॉल्ड एज द एक्शन स्टब पार्ट. एक्शन स्टब पार्ट के अपोजिट में मैंने एक्शन एंट्री वाला पार्ट दिखाया है, जहां पर मैंने क्रॉस किया है. ये क्रॉस इंटरसेक्ट करता है एक कॉलम को और दूसरे साइड से एक एक्शन को. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिसीजन टेबल. तो कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी अप्रोप्रिएट एक्शन हमें किस कंडीशन पे लेनी है. सो द इफ द कस्टमर इज बुक स्टोर, तो मैंने फर्स्ट कॉलम में वाई करके दिखाया है, और उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूं, इफ द ऑर्डर साइज इज मोर देन 6 कॉपीज, तो वहां पर भी मैंने वाई लगाया है, यस है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू है. उसके बाद जो एक्शन उस पर लेनी है, तो उसके नीचे मैंने एक्शन एंट्री पार्ट में क्रॉस लगाया है, बट अगेन इज द एक्शन ऑफ एलो 25% डिस्काउंट. सो इस तरह से हमारा पहला रूल खत्म हो गया. नाउ द सेकंड रूल क्या था हमारा, कि अगर कस्टमर हमारा बुक स्टोर है, तो दूसरे वाले कॉलम में मैंने वाई दिखाया है, बट उसके बाद जो ऑर्डर साइज ग्रेटर देन 6 कॉपीज है, उसके अगेंस्ट मैंने दूसरे कॉलम में एन लिखा है. तो इसका मतलब हो गया उसका ऑर्डर लेस देन 6 कॉपीज है. तो उस वाले केस में बुक स्टोर को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो मैंने सेकंड कॉलम के नीचे एक्शन एंट्री वाले पार्ट में मैंने क्रॉस लगाया है, बट अगेन इज द एक्शन ऑफ एलो नो डिस्काउंट. तो इस तरह से दूसरा रूल खत्म हो गया. अब तीसरा रूल हम चेक करेंगे. तीसरा रूल हमारा तीसरे कॉलम में दिखा रहे हैं कि कस्टमर इज बुक स्टोर, हमने एन किया हुआ है, नहीं है. ऑर्डर साइज ग्रेटर देन 6 कॉपीज, एन फिर से किया है, नहीं है. बट कस्टमर इज लाइब्रेरी इंडिविजुअल, हाँ यस है, तो वाई मैंने दिखाया हुआ है. और उसके बाद मैंने उसका ऑर्डर साइज 50 कॉपीज और मोर दिखाया हुआ, फिर से वाई लगाया है वहां पर. तो अब अगर हमारा कस्टमर लाइब्रेरियन है, इंडिविजुअल है, और साथ में ही उसका ऑर्डर साइज 50 और मोर कॉपीज है, then that individual or librarian will get the trade discount of 15%. तो मैंने थर्ड कॉलम में नीचे एक्शन एंट्री में क्रॉस लगाया है, बट मैंने ये क्रॉस लगाया है अलो 15% डिस्काउंट के अगेंस्ट. तो इस तरह से तीसरा रूल खत्म हुआ. नाउ विल कम टू द फोर्थ रूल. तो फोर्थ रूल में कस्टमर फिर से बुक स्टोर नहीं है, ऑर्डर साइज फिर से एन मैंने दिखाया है, बट कस्टमर इज लाइब्रेरियन और इंडिविजुअल, मैंने वाई किया है, यस है, बट सेकंड कंडीशन मैंने वहां पर नो की है. थर्ड कंडीशन को मैंने वहां पर यस किया है, यानी कि ऑर्डर साइज इज 20 to 49 कॉपीज. अब अगर ये दो चीजें हैं कि हमारा कस्टमर या तो लाइब्रेरियन या इंडिविजुअल है, बट साथ में ही उसका ऑर्डर साइज 20 to 49 कॉपीज है, तो वहां पर मैं उसको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं 10% का. तो नीचे मैंने एक्शन एंट्री में फोर्थ वाले कॉलम में क्रॉस किया हुआ है अलाउ 10% डिस्काउंट के अगेंस्ट. तो 4 रूल्स खत्म हो गए. ना तो फिफ्थ रूल में फिर से हमारा कस्टमर लाइब्रेरियन इंडिविजुअल है, तो वाई में मैंने वहां पर किया हुआ है, बट उसकी दो कंडीशंस पहले वो फुलफिल हुई है, वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. तो मैंने वहां पर दोनों पे एन लगाया है, बट तीसरी कंडीशन पे मैं जा रहा हूं
इफ द ऑर्डर साइज इज 66 to 19 कॉपीज। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इस पे जो मुझे एक्शन लेनी है दैट इज एलो 5% डिस्काउंट। तो एक्शन एंट्री मैंने क्रॉस लगाया है फिफ्थ वाली कॉलम में, बट एलो 5% डिस्काउंट अगेंस्ट एक्शन के अगेंस्ट। उसके बाद सिक्स्थ वाला रूल है। सिक्स्थ वाले रूल में कस्टमर इज लाइब्रेरियन, वो ट्रू है, बट उसके बाद उसमें तीन कंडीशन दो छी ऑर्डर साइज की, चाहे 50 कॉपीज मोर, 20 to 49, 6 to 19 कॉपीज, वो कोई मैट नहीं हो रही है। इसका मतलब अब कस्टमर अगर लाइब्रेरियन है, उसने ऑर्डर दिया है बट 6 से कम कॉपीज का दिया है, तो उस वाले केस में इस लाइब्रेरियन इंडिविजुअल को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो मैंने छठे कॉलम में नीचे क्रॉस करके लिखा है एलो नो डिस्काउंट। So this is how to codify the knowledge or model the problem using the decision table. Hope you understood this example. In this lecture, we have seen the concept of decision tree with the help of examples. Then we have seen the concept of decision table with the help of examples. So hope you understood this video lecture. Thank you.